इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है, तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। I just saw the film and it was amazing. I think every Indian should see it. पहली मूवी है जो देश के डॉक्टरों के लिए बनाई गई है, पहली मूवी है जो साइंटिस्टों के लिए बनाई गई है। अब तक तो आपने बुरा मत मानना, नाचने गाने वालों की मूवी बहुत देखी होगी, आपने टपटपी बजाने वालों की मूवी बहुत देखी होगी, मगर पहली मूवी है भैया, जोरदार ताली बजा देना उन लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में वैक्सीन बनाकर हमको बिना मास्क के घूमने के लिए मजबूर कर दिया आज की डेट में। वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। Always a pleasure to interact with Mr. Vivek Ranjan Agnihotri. He's frank, he's upright, and he speaks his mind out. But before Mr. Vivek Ranjan Agnihotri, we go to a little bit of serious stuff. Maybe a little bit of the Tashkent files, a little bit of the Kashmir files. थोड़ा warming up क्वेश्चन आपसे करता हूँ, और वो अभी इत्तेफाकन में बैठा हुआ था आपके इंतजार में. I was going through the social media. Now, for the record, I think the audience must be knowing it. Mr. Vivek Ranjan Agnihotri made his first movie as a director, where 2005, that was Chocolate. 18 years hence, he has directed nearly about 10 movies, which is a pretty good ratio. The last offering being the vaccine war. Now, whatever Mr. Vivek Ranjan Agnihotri does, the speculation is too high. हम लोग जैसे उसको हिंदी में पोस्टमार्टम बोलते हैं. Critical and appreciated both. But this time, with the vaccine war, I've seen it grow an all-time high. My only question is, you've been such an old-timer and you have worked so hard to the position where you are right now, Vivek. Do you feel at times you're targeted by a section of the film fraternity? Or by a fraternity or a section of the social media on purpose? ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या है, तो अच्छी बात है। बुद्धा को भी तो करते थे, हालांकि मैं बुद्धा नहीं बोल रहा था आपको, लेकिन सोक्रेटिस को भी बोलते थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लोग नहीं जानते. बट सी व्हेनेवर यू डू समथिंग व्हिच डिस्टर्ब द स्टेटस क्वो, राइट, देन पीपल गेट रेड. आप अगर समझिए ट्रेन में भी जा रहे हैं और आपका रिजर्वेशन भी नहीं है, और आपने जरा सा बोला भाई इतनी सी जगह दे दो, और वो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो रहे उसमें, वो बंदा उतर गया, आपकी सीट भी नहीं है, लेकिन कोई और आएगा और आपसे बोले भाई साहब ये मेरी सीट होती है, तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल. तो फिर इतने सालों से जिन लोगों की एस्टेब्लिशमेंट बैठा हुआ था और जिन लोगों का एक सिक्का जमा हुआ था, जिनकी दुकानें चल रही थी, उस स्टेटस को व्हेन यू चैलेंज, then obviously they will be rattled. So it's a star-dominated system where everybody is a slave. There is one king or Badshah or Shahnshah or who's that? Whoever keeps changing from time to time. Okay. पर अभी जो जिस हालत में ऐसा पहले नहीं था. पहले there was room for others also to exist. But today these people have shrunk the space and they don't want anyone else to exist except for them. And I, staying outside of that system, I created a kind of cinema which has voice, which has its very what I would say, ardent admirers and loyal supporters, and it is growing in size and numbers and appreciation. So it is rattling them because this is like creating an alternate system. Yeah. So that's why there is a problem. Now you can call it isolation, but I have chosen myself to stay outside. Okay, but I chose to stay outside after being cancelled by them. Okay. Yeah, it wasn't that I said, aha, now from today I have to stay outside. But when I realized that they cancel anyone who doesn't toe the lines, who doesn't kneel down in front of the Badshahs and Shahnshahs, then they start isolating. You did get a little bit of rough treatment? Little. In the starting? No, rough treatment means, what is the rough treatment? Basically neglecting you. Not offering you on the mainstream? No, more destroying you. More neglect. They destroy, they don't neglect. Okay. Neglecting is what? I mean, one person,
they destroy you. They try to finish you. They try to destroy you. And they the best wanted to कौन like नहीं मतलब वही जो अपने को बादशाह और शहनशाह और अपने को राजा समझते हैं, किंग बोलते हैं भाई। आज के जमाने में आप बताइए, अगर एक कोई पॉलिटिशियन कहते हैं कि मैं किंग हूं और मैं बादशाह, या कोई उसका चमचा बोल दे तो वो चुपचाप मना कर झापड़ मारेगा उसको, पागलों को मरवाओगे दुनिया में। और बिना किंग और वो बोले ही आप देखिए लोग फैशिस्ट वगैरह वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की तो एक एस्टेब्लिशमेंट और ये बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह ही पॉपुलर एस्टेब्लिशमेंट, राइट। यहाँ भी उसी लेवल की ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, विदाउट रीजंस और लॉजिक, जस्ट इमोशनल फॉलोइंग। तो उसमें लोग अपने को खुद को ऐसे डेजिग्नेशन अगर देते हैं तो मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़। बिल्कुल मतलब ये जो मेरी एक फीलिंग थी, मैं अभी एक्चुअली आपके आने के पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दी सोशल मीडिया, यू नो। एक बड़ा अच्छा इनके साथ वाकया हुआ विवेक अग्निहोत्री के साथ कि आप पल्लवी और नाना पाटेकर जी एक प्रमोशन में गए थे, तो मैं अभी वीडियो देख रहा था। और ये फिल्मों की बात है, मैं कंटेंट किसकी बात कर रहा हूँ कि अभी अपन आएंगे वैक्सीन वॉर पे, तो मेरे को मेन आपसे 2 ही मुद्दे में डिस्कस। वैक्सीन वॉर तो थिएटर में उस पर फिर भी मैं आपके लिए कल थिएटर में लोगों का रिएक्शन देने गया था, मैंने पंडित जी को बताया है। ईमानदारी से बताइएगा वो क्या। मैं बिल्कुल बताऊंगा, तभी तो मैं इतना कीन था, इसलिए आपने कहा क्या कंटेंट है, मैं कहा अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो नाना जी ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी, मेरे आप लोग बैठे हुए थे, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था। और अगर कंटेंट की बात करें, अगर 2023 में वैक्सीन वॉर जो आपकी रिलीज हुई है या अपन बाकी जो मूवीज रिलीज हुई है, तो वैक्सीन वॉर के पास इट इज व्हाट अ कंटेंट। अगर आप बाकी मूवीज देखें, एक दो छोड़ के, मैं ये सब तो नहीं कह रहा, पर बाकियां जो हिट भी गई कंटेंट ही नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे आपने बोला ना बादशाह है, किंग है, तो मैं उन मूवीज के नाम नहीं लेना चाहता, कंटेंट ही नहीं है। तो बट नाना पाटेकर सेट की अब ये पिक्चरें अपने को थोपी जा रही है, अगर आपको याद जी। और धीरे धीरे 10 साल के अंदर अंदर ये पिक्चरें अपने को अच्छी लगना शुरू हो गया जी। यू एग्री ऑन दैट? ऑफ कोर्स। आप देखिए राजस्थान गए हो कभी? आप बहुत बात। राजस्थान में मैंने बहुत शूटिंग की और बड़ा टाइम था, तो वहाँ क्या है, जो औरतें काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, तो उनको 8-8 घंटे पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, बच्चे हो जाते हैं तो वो छुट्टी भी नहीं ले सकते। तो व्हाट दे डू इज कि वो इतना सा अफीम अपने बच्चों को चटा देती है, 3 महीने के 4 महीने के, तो वो सोता रहता है, इतना कम, बहुत जरा सा, तो वो सोता रहता है 5-5, 6-6 घंटे। और जब वो बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, तब तक वो एडिक्ट, उसको ये पता ही नहीं होता है कि नॉर्मल क्या होता है। To cure his cough. The aid worker says mothers often give opium to their babies in their bottles. When they use opium, they become sleep and calm. When they stop the opium, they have some sleepiness, some pain. They cry and they not sleep well, and they don't eat anything. और ये एडिक्शन यही होता है, डंपिंग डाउन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एडिक्शन। ह्यूमन हम मेडिटेट क्यों करते हैं? बेसिकली टू डंप डाउन, मतलब हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, बहुत लॉजिक नहीं लगानी पड़े, कैलकुलेशंस ना करना पड़े, राइट। इसलिए तो मेडिटेशन करते हैं, फ्री अवर माइंड और थॉट्स। तो डंपिंग डाउन प्रोसेस बहुत ही एडिक्टिव होती है, ये लोगों को पता नहीं है। जैसे हम घर में डॉग्स को टेम कर देते हैं, डॉग को बहुत अच्छा है, उसके लिए तो बहुत अच्छी लाइफ है, उसको तो कुछ करना नहीं है। इसी तरह से आप देखिए हम ह्यूमन बींग्स को भी टेम करते हैं, एडवर्टाइजिंग वाले भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करती है, रिलीजन तो करता है, सबसे अधिक तो रिलीजन ही ट्रेन करता है आपके दिमाग को, पर वो ट्रेनिंग बुरी नहीं है। पर अब आपको अगर एक गांव है समझिए, और वहां जो भी बच्चा पैदा होता है उसको बेसुरा ही गाना आप सुनाते जाए, तो उसको सुर वाला गाना खराब लगेगा। सही है। तो यही हो गया जब आप अच्छा, वर्ल्ड की कौन सी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहां पे लोग कहते हैं माइंडलेस सिनेमा, या घर पे दिमाग छोड़ के आइए, और हमारे लोग जाते नहीं देखने बड़ी खुशी खुशी, और कहते हैं अरे यार, दूसरे दोस्त को भी बोलते हैं यार लीव योर ब्रेन बिहाइंड, दिमाग घर पे छोड़ के चले गए। आप बताइए ऐसा क्या है, क्या इसका मतलब? दैट मींस ये जो नाना पाटेकर जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो बार बार डंप कर रहे हैं अपने माइंड में बे कंटेंट की। मैं आपसे एक सवाल पूछता जी, चलिए ये सवाल आपसे पूछता, हम जितने लोग भी देखें वो भी अपने आप से ही सवाल पूछे। सबका कहना है कि बॉलीवुड एक बिजनेस है, मुझे भी बोलते हैं कि आप ये क्यों इस तरह की फिल्म बनाते हैं, तो धंधा है। तो अगर ये बिजनेस है, आपने कभी किसी बिजनेसमैन को आज तक सुना है कि रोज बोले आज मेरा 200 करोड़ का बिजनेस हो गया, आज मेरा 1000 करोड़ का हो गया, आज मैंने उसको पछाड़ दिया, उसको पटक दिया, आई हैव बीटन दिस पर्सन। अब मैं कभी सुना है वर्ल्ड में? आपने कभी किसी हॉलीवुड की फिल्म को ये कहते सुना है? किसी सर्कस वाले को ये कहते सुना? किसी नाटक, किसी संगीत वाले को, कि रॉक कॉन्सर्ट जो लोग करते हैं, जिनके यहाँ तो इतनी तादाद में लोग, कभी उनको कहते सुना है?
कभी आईपीएल वालों को कहते सुनो अरे आज तो मैंने 1000 करोड़ मार दी। वो तो इनकम टैक्स से करते होंगे बेचारे। अब सवाल ये है कि ये क्या है, ये मजाक, ये ऑडियंस को मूर्ख समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, वो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। ऐसे कई बार मैंने सुना है कि एक रिलेशनशिप में कई बार अगर आप किसी को बहुत ऑप्रेस करो तो उस ऑपरेशन की ही आदत पड़ जाती है, फिर ऑप्रेस नहीं करो तो बुरा लगता है। तो इसी तरह से अगर आप ऑडियंस को हाइपर मार्केटिंग कर करके डम डाउन कर देंगे तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि अच्छा इन दो लोग की लड़ाई हो जाए, जैसे नेशनल न्यूज चैनल्स ने किया। लोग देखना ही नहीं चाहते ऐसी कोई डिबेट जिसमें दो लोग एक दूसरे को गाली ना दें। हैबिट पड़ गई। That's what they've done. Okay. चलो, very good starting. As I said, this was the warming up. Rather the most interesting issue of the day, and that is your movie, The Vaccine War. In fact, before you came, we were discussing your movie is again catching up on the WhatsApp slowly. Today, one of our gentlemen, Mr. Pankaj, is sitting here. He said, now the Art of Living group has propagated that we must watch this movie, The Vaccine War, and it's going way ahead. And you rightly had predicted also that my initial response will not be very good because you don't get number of theatres as you desire so in the country. So it's slowly spreading up. Now I went to the hall once I came to know that I have the distinction of having Mr. Vivek Agnihotri as my guest for Cook Speech. So I personally went. 2-3 very frank questions by the people. Was the Indian Council of Medical Research or the National Institute of Virology involved in the making of this vaccine? Number one, Coronavac vaccine. Number two, Mr. Vivek Agnihotri is more as a propaganda for the government. How was the Indian Council of Medical Research involved? It was totally made by the Bharat Biotech. Who told you? Audience. Their reaction. That's why I made the film. इसलिए बस ये क्योंकि लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है। देखो और अगर मैं but I'll just cut short my question Vivek, then you can go full flow. और यही चीज बार-बार सोशल मीडिया में मैंने उसको आने के बाद कल मैं रात के 9:30-10 बजे घर आया, फिर मैंने इस चीज को गौर किया, मैं सोशल मीडिया पे गया। इतने यूट्यूबर हो गए कि वो कुछ भी बोलते हैं और लोगों के पास पहुंचता है क्योंकि अब चाहिए मसाला। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है लेकिन कोई जगते हुए सोने की एक्टिंग करे तो उसे कोई कुछ नहीं। बिल्कुल। और एक बार अगर कोई पॉलिटिकल लाइंस में सोचने लगे या रिलीजियस लाइंस में सोचने लगे तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्लैरिफिकेशन तो बनता है। जिसको ये मैं बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन आने के लिए भूमिका मान रहा हूँ आपको। अब जो आदमी कहता है कि जब दुनिया में भाई 1 लाख भगवान है, 10 लाख भगवान है, उसको आप बोलो नहीं एक ही भगवान है तो आप उससे आप तर्क नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, आप मर जाओगे, कुछ होगा। ठीक। और जो कहता है दुनिया में एक ही बस हमारा जो भगवान है वही भगवान है और बाकी कोई नहीं, उसको भी आप कन्विंस नहीं कर सकते। जो जिनने सोच ही लिया कि भाई हमें ऐसे ही जीना, उनकी बात है नहीं। लेकिन जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, दुनिया में साथ रह के जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बना। एक्चुअली ये पूरी की पूरी फिल्म मेरे अज्ञान से ही शुरू हुई। मुझे भी ये लगता था कि ये जो वैक्सीन है पूरी की पूरी किसी भारत बायोटेक या सीरम इन लोगों ने बनाई। जब मुझे पता चला आईसीएमआर के बारे में मुझे विश्वास नहीं। पहले तो मुझे यही नहीं पता था आईसीएमआर है क्या। फिर मुझे पता चला ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिसर्च वैक्सीन रिसर्च। दूसरी चीज मुझे ये पता चली कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है हमारे। तीसरी मुझे ये पता चली ये साइंस का नाम ही वायरोलॉजी, जिससे हम मरने वाले थे जिस वायरस से और जिस वैक्सीन ने बचाया उस साइंस को वायरोलॉजी। मुझे लगा मेरे जैसा सोशो पॉलिटिकली और BSL-4 लैब भी भारत में है, वर्ल्ड की 6 WHO अप्रूव्ड लैब में से एक भारत में। बहुत इज्जत की बात है और किसी को पता। तो मैंने फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, अब मैं वो नाम ले रहा हूँ जो इससे अधिक क्रेडिबल नाम्स नहीं, नेम्स नहीं। अभी आपको समझ में आएगा प्रोपेगेंडा कौन करता है और कौन नहीं करता। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट किया। एक्चुअली अभी जब मैं बाहर गया था तो उन्हीं के डायरेक्टर का फोन मैंने कहा जरा पता करिए इंडिया में क्या अवेयरनेस है। पहली बात तो इस साइंस को क्या बोलते हैं जिससे वैक्सीन वायरस जिससे हम मरने वाले थे मार्च में और जनवरी में जीवित हो गए, और ये किसने बनाई, ऐसे कई सवाल उन्होंने रिसर्च हमारे लिए ऑल इंडिया कंडक्ट किया और बड़ा मैसिव था, छोटा मोटा भी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे 90% लोगों को तो यही नहीं पता है साइंस को क्या। लोगों को ये नहीं पता 70% लोगों को कि बायो साइंस के अंदर ही आता है। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे मतलब ऐसे ऐसे पढ़े लिखे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोगों को यही नहीं पता कि ICMR क्या है, लोगों को यही नहीं पता कि NIV क्या है, लोगों को यही नहीं पता BSL-4 लैब क्या है। लोगों ने रात को 9 बजे एंटरटेनमेंट वाली जो न्यूज चैनल्स होती हैं गाली गलौज वाली, कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZNCL में। इतना बड़ा है ZNCL, कोई भी ऐरा गहरा आकर ZNCL के खिलाफ हो जाएगा, शब्द नहीं बोलेंगे आप जी मीडिया के खिलाफ। उनमें बैठ के जो नाम सुने वो मान लिए। भारत बायोटेक इज अ प्राइवेट कंपनी, देयर कंट्रीब्यूशन इज इमेंस, विदाउट देम इट वुड हैव बीन पॉसिबल।
लेकिन अगर आईसीएमआर का कोई रोल नहीं है तो आईसीएमआर को रॉयल्टी क्यों मिलती है? Okay. ICMR is getting royalty on the sale of the vaccine. तो आपको ये भी चेक करना चाहिए। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो आदमी कहता है उसको कुछ चेक करना चाहिए भाई। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं समझिए अगर मुझे लगता है कि मैं भारत के हित की बात करता हूँ तो लेकिन मैं उसके ओपोनेंट क्या करूँ वो भी पढ़ता हूँ, तो आईसीएमआर को रॉयल्टी क्यों मिलती है? ये कोई अंधा ही होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा। 3 बार तो लिख के आता है कि दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड गोइंग वायरल बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। ठीक है, तो वो किताब भी झूठ है जो उन्होंने लिखी है। वो जो सारे साइंटिस्ट आके हमारे बोलते हैं वो सब झूठ है। दुनिया भर के साइंटिस्टों ने देखी है, इंडिया में सारे साइंटिस्ट देखते हैं हमारी फिल्म की, तो 20-25 स्क्रीनिंग हमने की है, दुनिया देख रही है। किसी ने आज तक नहीं बोली ये बात, ना भारत बायोटेक ने बोली, ना आईसीएमआर ने बोली, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली। दूसरा, इस फिल्म को जब सीबीएफसी सर्टिफिकेट बना था तो जो लोग टास्क फोर्स में थे, जो मॉनिटर थे क्लास, समझ लीजिए, उन लोगों को एक्सपर्ट को बैठा के इस फिल्म की स्क्रूटनी हुई और उनके कहने पे बहुत सारे चेंजेस, करेक्शंस, डायलॉग, टर्मिनोलॉजीज, लैंग्वेज, कुछ वो क्या बोलते हैं साइंटिफिकली करेक्ट थिंग्स, ये सब किया गया है बाद में चेंज। तो अगर कोई ये सवाल उठा रहा है कि आईसीएमआर को, तो उन्होंने क्या समझ रखा है ये कोई बादशाह और किंग्स की फिल्म है कि कुछ भी दिखा दो? इट्स सच अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म, सच अ सीरियस फिल्म। और मुझे तो यानी मैं ये आप कंडक्ट कर सकते हैं सर्वे, आप कल आइए फिल्म देखिए, आपको है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स का कहना है कि किसी फिल्म को 10 साल में इतना सुपरलेटिव एप्रिसिएशन मिला ही नहीं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने आपको पहली फर्स्ट जो पैराग्राफ ही था। अब आपकी बात प्रोपेगेंडा की, तो अब तुम्हारे यहाँ बैठे तो क्योंकि मीडिया नहीं है रेगुलर, तो इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं दूँ। पहली बात, ये प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है मुझे आप बताइए, क्या होता है प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि यू आर इन फेवर ऑफ समथिंग। मैं एक चीज को मैं विवेक अग्निहोत्री को बहुत चाहता हूं, तो मैं ये अपने बुक स्पीच के माध्यम से आपको अच्छा प्रेस करूंगा, तो ये मेरा प्रोपेगेंडा होगा। ठीक है, जिसका बेस भी गलत हो सकता है या बेस झूठा नहीं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, डेमोक्रेसी क्या होती है? आप अपन रोल रिवर्स नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? क्यों नहीं, यार डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से बिलीव करते हैं। बिल्कुल। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है यू हैव टू चूज। आपको 2 लोगों में से एक को चूज करना है कि मैं इसको पसंद करता हूं, इसको नहीं पसंद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। दैट इज द मीनिंग एक्चुअली, राइट? या आई मेड माय चॉइस, दिस इज प्रोपेगेंडा। दूसरी बात और आपको बताता हूं, वर्ल्ड में ऐसी क्या चीज है जो प्रोपेगेंडा है? आप एक चीज का नाम बताइए कि विवेक ये प्रोपेगेंडा है। नहीं, कंटेंट का प्रोपेगेंडा जो नहीं, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये लोगों का वहम है कि विवेक अग्निहोत्री जो है सरकार के लिए। बहन की कोई दवा नहीं होती इस दुनिया में, बहन की कोई दवा नहीं होती, बहन की कोई दवा नहीं होती। जो आदमी ये कहता है अपनी फिल्मों में एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या प्रेम ही सब कुछ है और यही सब कुछ, वो भी तो प्रोपेगेंडा ही है। सारे रिलीजन्स दुनिया के प्रोपेगेंडा ही तो हैं, और है क्या? मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, ये प्रोपेगेंडा ही तो है। आई लव माई वाइफ, ये प्रोपेगेंडा ही है। प्रोपेगेंडा नाम की कोई चीज नहीं होती। प्रोपेगेंडा तब पॉलिटिकल टर्म्स में होता है जब आपको पैसा देके कोई काम करे, यानी आपको कोई लेना देना नहीं है मैं अच्छा हूं कि नहीं, मैंने आपको ये लिए पैसे जाओ मेरी तारीफ करो दुनिया भर में जाकर, वो है प्रोपेगेंडा, राइट? वो है प्रोपेगेंडा। और दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि मैं किसी का पैसा लेके काम करता हूँ, तो हाँ मैं प्रोपेगेंडिस्ट हूँ और नहीं कर सकता। क्यों ऐसा? जब आपने किया ही नहीं तो उसको अपन उस नेगेटिव में जाना क्यों? तो देखिए, प्रोपेगेंडा लोग क्यों बोलते हैं, बताऊं क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं नेशनलिस्ट फिल्में बनाता हूँ। नेशनलिज्म इंडिया में अच्छा वर्ड है, इंडिया के बाहर खराब वर्ड है। क्यों समझिए, प्रो इंडिया फिल्म कश्मीर, ये एक वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा क्या था मैं आपको बता दूं। क्यों मेरे को बोलते हैं ये लोग प्रोपेगेंडा? क्योंकि प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे इतने साल से। इन्होंने प्रोपेगेंडा ये फैला रखा था कि कश्मीर जो है उसको इंडिया, वो एक इस्लामिक स्टेट है जिसको इंडिया की हिंदू गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सारे वर्ल्ड में सारा प्रोपेगेंडा फैला हुआ था। मैंने सत्य दिखाया कि भाई हिंदू ही विक्टिम है वहां पे। ये एक प्रोपेगेंडा था कि हिंदू विक्टिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट्स जो है वो विक्टिम नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया की तो पूरी हिस्ट्री हिंदू के ही विक्टिमाइजेशन की है। अब ये कैसे समझाया कोई किसी को? आपका वो पहलू तो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया, व्हाट यू से इज करेक्ट, व्हाट यू शो। अच्छा, अब प्रोपेगेंडा, कोविड आया था, मेरी फिल्म ने दिखाया, क्या ये प्रोपेगेंडा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया ने वैक्सीन बनाई, क्या किसी ने भी बनाई, चलिए क्या ये प्रोपेगेंडा है?
नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं तो आज हम और आप इतने आसपास वैक्सीन के कारण बैठे हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल नहीं। NIV में काम करने वाली 70% महिलाएं हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा है? नहीं, बिल्कुल। उन महिलाओं ने बहुत त्याग और तपस्या की, क्या ये प्रोपेगेंडा है? इंडिया इसके अलावा और फिर बोलती प्रोपेगेंडा जो आदमी का वहम है आपकी मूवी से, प्रोपेगेंडा ये जो आप बोल रहे हैं कुछ प्रोपेगेंडा नहीं। प्रोपेगेंडा ये हो गया कि क्या उन महिलाओं ने और क्या ICMR ने वैक्सीन में अपना सहयोग दिया, ये लोगों को कहना गलत। अब वैसे तो लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया जब वॉर में जाता है तो कहते हैं हमारे सैनिक तो बिल्कुल नालायक है, कुछ करते नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि चांद पे आदमी नहीं गया था, लोग तो ये भी कहते हैं। तो ऐसे मूर्खों की बातों को हम सवाल नहीं बना सकते। आपको भी जज करना पड़ेगा कि ये बात बोलने वाला मूर्ख है कि ये अकलमंद आदमी है। जिस दिन कोई अकलमंद आदमी है, आपने पूछा तो मैंने उसको तर्क के साथ जवाब दिया। वो बोलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, सुनूंगा भी नहीं, मैं कहूंगा नमस्कार जी, बहुत अच्छा, आपका भला हो, आपके बच्चों का। तो ये अब ऐसे तो भाई अब मोदी जी को सारी दुनिया बोलती है, हमारे जो अपोजिशन की थी, ये फैशिस्ट है। आप बताइए फैशिस्ट है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। तो बोलने को तो कोई किसी को कुछ भी, लोग अमिताभ बच्चन को भी गाली देते हैं, दिन रात कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या I took this opportunity for you to clear up the whole thing. I know because you had discussed this option on 15th October that you are going to make this movie and dedicate it to women. आपने ये बोला था एक औरत का माँ का त्याग है और वो वाकई में उसमें शो भी किया जो माँ का त्याग था। तो ये एक जो कहते हैं ह्यूमर कहिए या एक एप्रीहेंशन जो एक जहन में ये सब कश्मीर के कारण चल रहा है। आप देखिए कश्मीर फाइल्स ने वो काम किया जो भारत सरकार 70 साल में नहीं की। एक फिल्म ने पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर दिया, पूरा ग्लोबल नैरेटिव चेंज किया और बड़े बड़ी ताकतें। आप सोचिए तो कितनी मेरे साथ ऐसे थोड़े घूमते हैं ये लोग, क्या ऐसे ही आपको लगता है कि चलता है? वजह तो होगी ना, तो ऐसा तो नहीं है। तो बहुत बड़ा एक काम हुआ है उस फिल्म से, और ये वैक्सीन वॉर भी एक बहुत बड़ा काम है वर्ल्ड में। मैं जहां भी अमेरिका वगैरह सब होके आया हूँ, सारी कंट्रीज के एम्बेसडर्स लोग इतनी तारीफ करते हैं इंडिया की। आज अगर भारत के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हैं तो वैक्सीन के कारण खुले हैं। अच्छा, उसमें एक आपका जो पहलू था कि प्रोपेगेंडा बाय द फॉरेन जर्नलिस्ट नॉट टू यू सी टू इट दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट, व्हाट इज इट दैट इंडिया इज मेकिंग दिस वैक्सीनेशन? तो उसका देखिए ये था कि इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन मार्केट है। ये दुनिया में दो लॉबीज जो हैं, दे आर वेरी वेरी लीथल डेडली लॉबीज, जो सरकारें गिराती हैं, बनाती हैं, चलाती हैं। एक है फार्मा लॉबी और एक है आर्म्स लॉबी। सबसे ज्यादा पैसा ताकत इनकी। ये दो चीजें कंट्रोल करती हैं, डेथ एंड हेल्थ। फार्मा लॉबी हेल्थ कंट्रोल करती है और आर्म्स लॉबी डेथ कंट्रोल करती है। इसलिए ये सबसे पावरफुल है। बड़ी बड़ी सरकारें इनके सामने घुटने टेकती। वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट करप्शन के साथ जिंदा रह सकती है, बिना एजुकेशन के साथ जिंदा रह सकती है, ऑपरेशन करके जिंदा रह सकती है, औरतों के साथ अत्याचार करके जिंदा रह सकती है, लेकिन बिना हेल्थ प्रोवाइड किए हुए, मेडिसिन प्रोवाइड किए हुए कोई दुनिया की सरकार टिक नहीं सकती। और मिलिट्री के लिए बिना आर्म्स खरीदे नहीं रह सकती। तो ये दो चीजें वर्ल्ड की सबसे बड़ी, ये समझ लिया आपने? तो जब ये कोविड का सारा आया तो 135 करोड़ लोग, 140 जितने भी हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को सबको जोड़ दो, उससे बड़ा मार्केट। अब इस मार्केट को कैप्चर करना, कैसे कैप्चर किया जाए? लोकल जो बने उसको बनने नहीं दिया जाए। हाँ, और उसको बनने नहीं दिया जाए और भारत सरकार को घुटने टिकवा के अपनी वैक्सीन बेची जाए और भारत सरकार को लूटा जाए। पर अगर आप आंकड़े देखिए तो कोविशील्ड जो है दैट वाज कंज्यूम्ड बाय मोर देन 80-85% पीपल। हाँ, तो वो फॉरेन की वैक्सीन नहीं है, उसके ट्रायल्स इंडिया में हुए। इंडिया उन वैक्सीन को इंडियन मानती है जिसके ट्रायल्स इंडिया में और जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। करेक्ट। अब इन सब की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी जो टोटल एक्सप्लॉइटेटिव थी कि भाई आप अब करोड़ों अरबों रुपए हमें एडवांस में दीजिए और अगर हम वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाए तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। आप अग्री कर जाएंगे इस बात? नहीं, कभी कोई भी नहीं करेगा। दूसरी उनकी थी कि अगर कोई मर गया आपका आदमी हमारी वैक्सीन, तो हम जिम्मेदार नहीं उसको। तीसरी उनकी थी आपको कोई शिकायत होगी तो केस चलेगा न्यूयॉर्क में, आपकी सरकार, आपका कोर्ट, आपका सब, कैसे हम जीतेंगे। चौथा उनका था -70 डिग्रीज में उनकी वैक्सीन रखनी पड़ती, कैसे रखता भारत। पांचवी उनकी ये थी कि उसके नीडल एक सिरिंज लगती है जो वो देने को तैयार नहीं थे, तो वो भी हम प्रीमियम में कहीं और से खरीदे। तो आपका जो कहना था इस मूवी के माध्यम से आपने जो रिफ्लेक्ट किया है कि ये जो अपन कोवैक्सीन बना रहे थे, इसको बनाने में, सक्सेसफुली लॉन्च करने में प्रोपेगेंडा था कि नहीं हो? हाँ, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे लोगों को हायर किया। आपके शायद ध्यान में नहीं आया हो, लेकिन
कई तमाम जर्नलिस्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गए थे कि फाइजर क्यों नहीं लेते, फाइजर क्यों one read a lot. Those days one read a lot, but the mind never went there. फिर साइंस एडिटर्स थे वो पीछे पड़ गए कि ये वैक्सीन सब स्टैंडर्ड है, कोवैक्सीन। उन्होंने फेक आर्टिकल्स और र्यूमर्स और प्रोपेगेंडा करना चालू किया, जिसके अगेंस्ट तेलंगाना कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वायर मैगजीन के 14 आर्टिकल्स को पुल डाउन करके कि ये फेक न्यूज मेरी फिल्म में दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर अभी बोला स्टे चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन अभी रोक दिया, ठीक है, लेकिन उनको अभी इजाजत नहीं है कुछ लिखने नहीं, झूठ के लिए, राइट? अब स्टे क्या, अब आप कोई भी चीज लेके चले जाइए, आपके खिलाफ आप जाएंगे तो स्टे ही हो गया, लेकिन वो 14 आर्टिकल तो वापस नहीं आए ना, नहीं, वो अभी तक तो फेक न्यूज है आज की तारीख में। और टुडेस डेट इट इज, ठीक है। और इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, जो बात बात पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो बात बात पे कहते हैं फैशिस्ट गवर्नमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमको। कल कुछ लोगों को रेड पड़ी कुछ जर्नलिस्ट लोगों के घर पे, तो देखिए कितना तबाही मच गई हिंदुस्तान में, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और जैसे प्रेस वाले को ही पढ़े, इसको लेके उन्होंने क्यों नहीं बोला किसी को, और ये खबर बाकी इंडिया के लोगों को क्यों नहीं पता, इसको दबा दिया गया। ये सारा एक गेम है, क्या आम जनता समझती नहीं है कि गेम क्या चल रहा है। मैं करता हूँ पर्दाफाश, मैंने बुधाना ट्रैफिक जैम जो 2011 में दिखाया था, 2016 में वो प्रूव हो, और आप कल ही देखिए, कल रेट पड़ी है, कई लोग जो भी जिसको जो बोलना है, लेकिन ये एविडेंसेस तो बियॉन्ड डाउट है कि कुछ जर्नलिस्ट लोग फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पैसा लेके, ये तो सत्य है, इसमें कोई दुनिया की ताकत सारी दुनिया में करते हैं। और चाइना तो एम्प्लॉय करता ही है जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ये तो सारी इतने, इसके ऊपर तो इतनी बुक्स है, इतनी नॉलेज है, CIA, KGB, इंडियन रॉ, नाम लीजिए सब लोग। I think fair. I think the viewers also, Book Speaks, and all those who are listening right now, very nicely explained by Vivek Ranjan Agnihotri. ICMR was totally involved. The National Institute of Virology was totally involved. Any doubts? Please get back to us. Absolutely, I think very well explained, Vivek. Thank you. Your next project, Delhi Files? हाँ, Delhi Files कर रहा हूँ, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट अभी मैंने अनाउंस करूँगा। That is again with Files or that's No, that Files का ही लास्ट है। अच्छा, Delhi Files. Trilogy, it was supposed to be a trilogy. So when do you plan to start the shooting and? देखते हैं, अभी कर रहा हूँ, जनवरी और मार्च के बीच में सोच रहा हूँ। You will start that. So anyway, thanks a lot, Vivek, and I hope, ladies and gentlemen, you liked it. Go and watch this movie, The Vaccine War. Give your comments. We are there. Vivek is there to reply you back. Thank you, Jay. Thank you. सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। Hi, hope you liked this episode of Cook Speaks. Our sincere effort to get such masters again and again, different fields, maybe it's sports, art, culture, music, theatre, any field, the masters should be there on Cook Speaks. We require your help to go more wider on a larger canvas. Subscribe to our channel, press the bell icon.